Good morning, students. Welcome to Harghar Pathshala program. Today, my topic is image types and creation of a digital collage. So, we will see what different type of images are available and how we will create a digital collage, which is a collection of images and fixed on a single paper. Now, collage will look like this. Uh, Myself Gulshan Kumar, and I am posted at GSS Tangroti. So let's begin. So this is our topic outline. We will discuss about the image types first, and then we will see the difference between various image types. Then we will go through the extensions which various images uses, and then we will see how to create a digital collage. And there is a worksheet attached with this presentation. You have to solve it on your own. So starting with the images. So we already deal with lot of images in current world. Images basically are of two types. One is bitmap images, and bitmap images are those images which are made up of pixels. Further, they have extension of TIFF, JPEG, Joint Photographic Expert Group. We will see these extension in detail in next presentation. PNG and GIF. So these are the categories which fall under the bitmap images, and the other type of images are vector images. Now vector images are those images which are made up of mathematical expression, and they doesn't get blurred by zooming, means they never lost their quality. Now the PSD image, photoshopped document, EPS image, and SVG image falls under the category of vector images. Now what is the difference between bitmap and vector images? We have already seen the categories which falls under bitmap and vector images. So let's see the difference. Now the major difference between bitmap and vector images is that bitmap images are made up of dots called pixel. यहाँ पर पिक्सल्स होते हैं जो कि बिटमैप इमेजेस को बनाते हैं. पिक्सल एक छोटा सा स्क्वायर होता है स्क्रीन के ऊपर, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक होता है इमेज का. सेकेंडली वेक्टर इमेजेस जो हैं, दे आर मेड अप ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस, समथिंग लाइक equation of the circle you can consider for it. Second point is resizing the image affect its resolution, means bitmap images are resolution dependent. जब हम किसी bitmap इमेज को जूम करेंगे तो उसकी जो क्वालिटी है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, जबकि वेक्टर इमेजेस जो हैं दे आर नॉट रेजोल्यूशन डिपेंडेंट, एंड स्केलिंग देम अप और डाउन डजंट इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वेक्टर इमेजेस. नाउ बिटमैप इमेजेस आर suitable for the photographs. Most of the bitmap images like JPG and PNG, those are used for photography. Second, in the vector images, these are used for the logos,
clip arts and icons. वेक्टर इमेजेस जो होती हैं वो बिटमैप इमेजेस से छोटी होती हैं, जबकि सॉरी जबकि वेक्टर इमेजेस जो हैं वो बिटमैप इमेजेस से कम साइज़ में होती हैं, मीन्स उनका साइज़ जो है वो काफ़ी कम होता है। एक्सटेंशन हमने प्रीवियसली देख ली है। बिटमैप इमेजेस में फाइल की एक्सटेंशन BMP, TIFF, JIF और JPG होती है, जबकि वेक्टर इमेजेस में SVG, EPS, PDF एंड PSD एक्सटेंशन आपको पता ही होगा, जो कि कंप्यूटर में फाइल नेम के बाद डॉट साइन से सेव होती है। इसी से ही कंप्यूटर को पता चलता है कि वो किस टाइप की फ़ाइल है और कौन सी एप्रोप्रिएट एप्लीकेशंस जो हैं उसको ओपन कर सकती हैं। नाउ बिटमैप इमेजेस में फर्स्टली वी विल सी JPG इमेजेस क्या होती हैं। JPG इमेजेस स्टैंड्स फॉर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इमेजेस का। ये इंटरनेट, कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस पर वाइडली यूज़ होती हैं। आप अगर कोई भी डिजिटल कैमरा से इमेज कैप्चर करोगे तो दैट विल बी स्टोर्ड इन अ JPG एक्सटेंशन। नाउ PNG इज़ पोर्टेबल ग्राफिक्स फॉर्मेट एंड it is mostly used uncompressed raster image format on the internet। और PNG इमेजेस में कोई कॉपीराइट की लिमिटेशंस नहीं होती हैं। आप लोग कभी इंटरनेट के ऊपर इमेजेस का यूज़ करते हो तो वहाँ पर कॉपीराइट्स का भी इशू रहता है। आप लोग जो इमेजेस कॉपीराइट्स होती हैं उनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। टिफ इमेजेस हैं टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, जो कि हमारी प्रिंटिंग और पब्लिशिंग इंडस्ट्री में काम आता है, और ये किसी भी तरह की कंप्रेशन टेक्निक का यूज़ नहीं करता है। नेक्स्ट इज़ ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, और ये कॉमनली यूज्ड वेब के ऊपर यूज़ होती हैं। आपने ये इमेजेस देखी भी होंगी। मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ इसका। जैसे कि ये एक GIF इमेज है जिसमें कि डाटा जो है ये कुछ मूवमेंट सी आपको दिखाई देगी इसमें, जैसे ये सर्कल मूव कर रहा है, और भी बहुत सी इमेजेस इसमें होती हैं। नाउ मूविंग बैक टू द प्रेजेंटेशन। वेक्टर इमेजेस क्या होती हैं। वेक्टर इमेजेस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से बनी हैं। PSD है फोटोशॉप, जो हमारा यहाँ पर चैप्टर है उसके अंदर, उससे जो भी इमेजेस क्रिएट होती हैं वो PSD इमेजेस होती हैं। और ये इमेज एडिटिंग फ्रेंडली फॉर्मेट है। इसमें मल्टीपल लेयर्स का हम यूज़ करेंगे। हम लोग देखेंगे भी आगे कैसे हम लेयर्स का यूज़ कर सकते हैं। और जो फोटोशॉप्ड डॉक्यूमेंट हैं वो बेसिकली ग्राफिक्स डिज़ाइनर, पब्लिशर, प्रोड्यूसर और बहुत से दूसरे प्रोफेशंस में PSD का यूज़ होता है। जैसे कि आपने अगर कोई वेबसाइट बनानी है उसके लिए आप लोग एक PSD क्रिएट करके अपने किसी क्लाइंट को उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो दे सकते हैं। इसी तरह SVG इमेजेस हैं, ये 2 डायमेंशनल वेक्टर ग्राफिक फॉर्मेट हैं। ये W3C द्वारा बनाया गया था, और इट डिस्क्राइब्ड इमेज यूजिंग टेक्स्ट फॉर्मेट दैट इज़ बेस्ड ऑन XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका जो बेसिस होता है वो XML से क्रिएट होता है। नाउ द लास्ट वन इज EPS। इट इज़ द ग्राफिक फाइल सेव्ड इन एनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट फाइल फॉर्मेट। 2D वेक्टर ग्राफिक्स इसमें होते हैं। ये मिक्सचर है 2D वेक्टर ग्राफिक्स का, बिटमैप इमेजेस का और टेक्स्ट का। डिजिटल कोलाज।
definition of digital collage is when we will combine photos, text and any form of graphic from some different source, और जब हम उसको एक साथ एक जगह पर प्लेस कर देंगे तो उसको हम कोलाज कहेंगे। आप लोगों ने कोलाज जो है वो घर में भी देखे होंगे काफ़ी। इसमें हम लोग मैगज़ीन की क्लिपिंग्स, पेंट्स, हैंडमेड पेपर, या आप अगर कोई अदर आपका आर्ट वर्क है उसको अटैच करके रख देते हैं तो उसको हम लोग एक कोलाज बोलते हैं। तो आज हम एक कोलाज बनाना सीखेंगे भी फ़ोटोशॉप की हेल्प से। तो स्टेप्स उसके ऐसे रहेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने जो भी इमेजेस आपने यूज़ करनी है कोलाज के लिए उसको आप लोग फ़ोटोशॉप में ओपन कर लेंगे और कम से कम 3 इमेजेस जो हैं वो होनी चाहिए। इसके बाद आप लोग किसी भी साइज़ का अपना डॉक्यूमेंट जो है वो फ़ोटोशॉप में मेंशन करके ओपन कर सकते हैं, उसकी रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। कोलाज बनाने के डिफरेंट वेज हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने इमेजेस जो हैं वो ओपन कर ली हैं फ़ोटोशॉप में तो आप उनको सेलेक्ट करके कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर फाइल, ये यूज़र इंटरफेस है फ़ोटोशॉप का, तो आप यहाँ पर फाइल में न्यू कर सकते हैं और यहाँ से मैंने ये पहले से एक कस्टम टेम्पलेट इसका बना के रखा हुआ है जिसमें कि आप हाइट और विड्थ देंगे और रेजोल्यूशन देंगे। उसके बाद क्रिएट, तो ऐसा आपके सामने डिस्प्ले होने लग जाएगा। यहाँ पर राइट हैंड साइड में इसकी लेयर्स हैं सॉफ्टवेयर की। लेयर्स जो हैं वो इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहता है फ़ोटोशॉप के अंदर, क्योंकि आप लेयर्स में काम करते हैं ताकि आपका काम जो है वो मिक्सअप ना हो। और यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में टूल बार है, डिफरेंट टूल अवेलेबल हैं, जैसे क्विक सिलेक्शन टूल है। जब आप इसके ऊपर कर्सर लेकर जाओगे तो ये इंटेलिजेंस की हेल्प से आपको उस टूल की वर्किंग भी दिखाता है। यहाँ पर टूल के अंदर कुछ हिडन भी होते हैं जिसको कि आप राइट क्लिक करके देख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग एक नई लेयर बनाते हैं। ओके, और फाइल में से हम यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर एक ग्रिड लेआउट भी बना सकते हो। जैसे कि अगर आपने 4 इमेजेस लेनी है तो ओके करके यहाँ पर 4 इमेजेस जो हैं वो बन गई। अब आप क्या कर सकते हो, एक नई लेयर बनाकर वहाँ पर रेक्टेंगल टूल लेकर इसको फिल कर सकते हो विद द कलर सिलेक्टेड, राइट। इसी तरह हम लोग हर लेयर में रेक्टेंगल टूल से डिफरेंट कलर जो है वो फिल कर लेते हैं। एक और लेयर बनाएंगे हम लोग। अब आप यहाँ पर जो लेयर्स बन रही हैं उनको आप हाइड भी कर सकते हो ताकि आपका जो काम है वो अलग अलग लेयर में हो रहा है, जिससे कि अगर आप किसी लेयर में कुछ मिस्टेक करते हो तो उसको डिलीट भी आप राइट क्लिक करके लेयर को डिलीट भी कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पर कलर और ले लेता हूँ और इसको भर लेते हैं। एक लेयर और बनाऊँगा मैं और उसमें जो कलर है वो मैं ये वाला भर दूँगा। तो इस तरह से आपका एक कोलाज का लेआउट जो है वो तैयार हो गया। ठीक, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप्स हैं, हमने यहाँ पर बेसिकली जो एक इमेजेस हैं उनके लिए
उनको इन स्केयर्स में ऐड करना है। तो आप लोग इमेजेस कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से इमेजेस लूँगा, कोई बेडिंग की इमेज है, तो आप लोग जिस लेयर पर इसको डालना चाहते हैं वहाँ पर सिलेक्टेड लेयर पर आप लोग इसको डाल देंगे, राइट। सो यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया, राइट। सो इस तरह से आप लोग अपनी इमेज को पोजीशन कर सकते हैं और आप लोग सारी इमेजेस जो हैं वो डिफरेंट बॉक्सेस में पर्टिकुलर लेयर को सिलेक्ट करके उसमें डाल सकते हैं। यहाँ से ऑप्शंस में आपने यहाँ पर टिक करना है, उसके बाद ये यहाँ पर फिक्स होगी। अब मैं अगर इसको लेयर को छुपा दूँ तो इसमें हमारी इमेज जो है वो विजिबल नहीं होगी। अब मैं नेक्स्ट लेयर में एक और इमेज डालूँगा। यहाँ पर ये पीएनजी इमेजेस हों तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पीएनजी इमेजेस में कुछ प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी आपको। तो इस तरह से आप लोग सभी में इमेजेस डाल के, राइट, सो ऐसे आप एक अपना कोलाज जो है वो तैयार जो कर सकते हैं। आप लोग YouTube पर भी इसकी मदद ले सकते हैं अगर कोई आपको प्रॉब्लम आए, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस जो है वो की है इसकी। जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतने ही परफेक्ट आप लोग इसमें बन जाओगे। तो इस तरह से आप इमेजेस अपनी डालते रहें इसमें, और जो है आपका कोलाज बनकर तैयार हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट टाइम आप अपना कोलाज जो है वो बाय योरसेल्फ रेडी कर सकते हैं। तो ये स्टेप्स हैं, ये आपने थ्योरेटिकल नोट्स भी बना लेने हैं। इसके बाद आप जो आपने सारी लेयर्स ली उनको कंट्रोल शिफ्ट ई करके मर्ज भी कर सकते हैं। एक लेयर जो है वो आपकी अब बैकग्राउंड में आ गई है। इसके बाद आप क्रॉप करेंगे फाइनल इमेज को, और अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेस है तो उसको रिमूव कर देंगे और सेव कर लेंगे इसको। तो आज की जो वर्कशीट है उसमें ये 3 ट्रू फॉल्स हैं, ये सब कुछ हमने कवर किया है। और ये 3 क्वेश्चन हैं जो कि आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। वर्कशीट आपको सेपरेटली भी अटैच्ड मिलेगी। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगी, तो अगर आपको फ़ोटोशॉप में कोई हेल्प चाहिए है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हेल्प जो है वो ले सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस